Uttarakhand has long been known as Devbhoomi, a land of temples, rivers, and quiet mountain towns. For decades, it was seen as a place of spiritual harmony, where pilgrims, tourists, and locals shared the same roads and sacred spaces. But in recent years, something has changed. Conversations that once focused on jobs, migration, and development are now dominated by religion and identity. Across the state, tensions around religion and identity are reshaping everyday life. From interfaith couples struggling to marry to workers and travelers being questioned about who they are and where they belong. Calls to resist non Hindus from pilgrimage spaces, demolitions of religious sites, and growing social surveillance are turning matters of faith into matters of control. For those whose lives depend on tourism, drivers, hotel workers, and small traders, fear and uncertainty are becoming part of their routine. For some, silence now feels safer than speaking out. Interfaith relationships reveal the shift clearly. Marriages across religions, once private decisions, now attract public scrutiny. Couples face intimidation, social media attacks, and pressures from vigilante groups. Hotels hesitate to host them, and lawyers tread carefully. देखिए, आज हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं देहरादून के शहीद स्थल पर बैठे हुए हैं, जहाँ की उत्तराखंड राज्य के लिए जब स्टेट बनी थी उसमें लोगों ने जो अपनी कुर्बानी दी, आज उस जगह पर बैठे। लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये बात हमें गंभीरता से समझ में आ रही है कि ये जो देवभूमि जिसको कहा जा रहा है, तो वहाँ पर बहुत सी ऐसी विचारधाराएं काम कर रही हैं कि जो हमारे समाज को आपस में एक दूसरे को विभाजन कर रही है। खासतौर पर जब ये बात आ रही थी कि कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो धार्मिक स्थल हैं जो वन क्षेत्र में हैं उनको हटाया जाए वन क्षेत्र से, तो यहाँ की सरकार ने समानता का और निष्पक्षता का जो उसका बोध होना चाहिए उसकी बजाय केवल उन विशेष समुदाय के लोगों की मज़ारों को गिराया, जिससे ये प्रदर्शित हुआ कि ये सरकार एक विशेष वर्ग का समर्थन करती है। इतना ही नहीं, उसने जो पुरौला उत्तरकाशी में एक घटना हुई जिसको पहाड़ प्लेन के संग जोड़ा गया, फिर उसके बाद सरकार के द्वारा ये कहा गया कि नहीं ये तो हिंदू मुसलमान का मामला है। उसके अलावा यहाँ पर जो तमाम क्षेत्र हैं ऐसे जहाँ पर ये बात आई कि घरों में लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, उस पर ऐतराज़ करना शुरू कर दिया। तमाम जगहों पर जो मंदिर हैं उन पर कई जगह ये पोस्टर लगाए गए कि गैर हिंदुओं का प्रवेश करना वर्जित नहीं। ये बात काफ़ी पुरानी है, लेकिन नए स्वरूप में जो हमारी उत्तराखंड की सरकार है ये फिर से एक नया लेवल लेकर आ गई। और मेरा पूरा आरोप है कि उन लोगों को ये पूरा संरक्षण दे रही है जो इस स्टेट के अंदर एक विभाजन पैदा करने की शक्ति रखते हैं, खास तौर पर हिंदू मुसलमान के मामले को लेकर, हिंदू क्रिश्चियन के मामले को लेकर, और जो दूसरी जातियां हैं। अभी आपने सुना हुआ कि यहाँ पर त्रिपुरा के एक बच्चे की हत्या कर दी गई, उसको चाइनीज़ कहकर। और इसी तरीके से अभी एक घटना नई आई है जिसमें कश्मीर के बच्चे को जो शॉल बेच रहा था उसको मारा पीटा है। सरकार अपनी तरफ से क्या कह रही है कि हरिद्वार में जो वहाँ की हर की पौड़ी की जो व्यवस्था देखने वाली संस्था है वो कह रही है कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का आना प्रवेश निषेध किया जाए, उससे हमारे धर्म की रक्षा हो। तो बजाय सरकार बीच में आकर ये कहने की कि नहीं, इससे अगर हम करेंगे तो इससे विभाजन पैदा होगा, सरकार उन लोगों का समर्थन करेगी। तो Policies and regulations have also contributed to the changing atmosphere. New rules around live-in registrations and marriage procedures have increased documentation and oversight. Earlier governments had introduced incentives to encourage intercaste and interfaith marriages. But today, the mood feels different. Communal flashpoints in towns like Haldwani and Purola have deepened mistrust. Many residents say the change has not been sudden but steady, a gradual hardening of attitudes. For centuries, Har Ki Pauri in Haridwar has symbolized spiritual cleansing and collective devotion.
But today, this sacred space is also at the center of a growing debate about who belongs here and who does not. New signboards restricting non Hindus from certain areas have transformed this pilgrimage hub into a flashpoint over faith and access. The move, justified by some as protection of religious sanctity, has also sparked concern about exclusion and rising social scrutiny. On the ground, its effects are already visible. Workers who once moved freely around the ghats now stay at a distance. Visitors are watched more closely. Suspicion travels faster than pilgrims. In a city built on the idea of spiritual openness, Haridwar is now reflecting a deeper tension. The change is visible across Uttarakhand's sacred sites. Pilgrimage centers like Badrinath, Kedarnath, and Gangotri are implementing early restrictions. Religious leaders argue these steps protect tradition, while critics warn that public spaces are being redefined along religious lines. अगर इसी तरीके के प्रतिबंध कुछ तथाकथित हिंदू संगठनों द्वारा बद्रीनाथ, केदारनाथ और दूसरी जो हमारे चार धाम हैं यहाँ पर उन पे भी लगाए गए तो उसके बड़े विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। हमारा जो टूरिज्म है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और हमें एक बड़ी रेखा खींचने में निस्संदेह असफल होंगे कि जब हम ये कहें कि गैर हिंदुओं का प्रवेश हमारे धार्मिक क्षेत्रों में आना बंद हो। हमें यहीं पर रुकना चाहिए। सरकार को ये मानना चाहिए कि ये तरीका गलत है। आज सरकार क्या कर रही है? सरकार ने अपने आप को एक बहुत बड़ा तमगा दे दिया है कि यूसीसी लागू करने वाला वो पहला इस देश के अंदर पहला स्टेट है और वो टारगेट कर रही है उन नौजवानों को जो अपनी ज़िंदगी को संविधान के अनुसार जो उनको अधिकार दिए गए हैं कि अपनी ज़िंदगी में कितना पढ़ना है, कितना लिखना है, कितना आगे जाना है, अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार, अपने रोज़गार को चुनने का अधिकार, उस पर ये सरकार यूसीसी के तहत एक प्रतिबंध लगा रही है। लिविंग रिलेशन के नाम पर जो कानून बनाया गया है उससे उनके ऊपर आरोप लगा रही है। यहाँ देहरादून के अंदर तमाम जगहों पर जब पार्कों में आपस में दो फ्रेंड्स लड़के लड़कियाँ मिलते हैं तो उनके ऊपर बजरंग दल वाले क्या करते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। पूरे देश के अंदर ऐसा है, लेकिन उत्तराखंड में सरकार ही वो काम कर रही है तब हमें इस पर एतराज़ है। सरकार को सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट गवर्नड बाय पीपल, जनता के लिए होनी चाहिए। उसका कोई चरित्र नहीं होता, उसकी कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। उसको तमाम लोगों को एक समान के देखना चाहिए। उत्तराखंड की सरकार सांप्रदायिक हो गई है, वो एक धर्म विशेष के लिए काम कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस स्टेट में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, वोटों की खातिर किया जा रहा है, जिसको बंद होना चाहिए। और हम जहाँ यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब उत्तराखंड है, इस विचारधारा को लेकर भी जाना चाहिए। क्योंकि ये विचार जब हम ले जाएंगे तब हम इस बात को ले जाएंगे कि जो नौकरी का सवाल है, पढ़ाई का सवाल है और जो स्वास्थ्य का सवाल है, वो जो नौजवानों से जुड़े हुए सवाल है, उन सवालों को ज़्यादा मजबूती से उठा पाएंगे। यदि हमको इन सवालों के ऊपर अपने को गौर करना है तो हिंदू मुसलमान नौजवानों के ऊपर जो हो रहा है यूसीसी के अंदर, उन तमाम चीज़ों पर रोक लगानी पड़ेगी। ये बात मैं मजबूती से कहता हूँ कि सरकार को अपने चरित्र को बदलना चाहिए। सबके लिए सरकार हो, ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए 1916 में अंग्रेज़ों के कालखंड के अंदर महामना भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी और श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार के माध्यम से, हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से हरिद्वार का एक म्युनिसिपल बायलॉज बनाया गया, जिसके अंदर एक बहुत बड़े क्षेत्र को अहिंदू प्रवेश निषेध घोषित करा गया और एक लगभग हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के एक 8 किलोमीटर लगभग सराउंडिंग एरिया को अहिंदू निवास निषेध किया गया कि उसमें अहिंदू निवास नहीं कर सकता। हमारी तीर्थ की मान्यता, मर्यादा, तीर्थ की रक्षा, तीर्थत्व की रक्षा और हमारी धर्म की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों के कालखंड के अंदर भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक कड़ा कानून इस क्षेत्र का बनाया गया। अंग्रेज़ों ने बनाया और अंग्रेज़ों ने भी हमारी धार्मिक मान मर्यादाओं को ध्यान में रखा। 1916 में जो म्युनिसिपल बायलॉज यहाँ बनाया गया, 1916 में ही श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड की स्थापना करी गई। और आपको सुनकर के प्रसन्नता होगी कि काशी
हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1916 में ही महामना के माध्यम से हुई। ये तीनों एक ही क्रम के अंदर एक ही वर्ष के अंतर्गत ये सब हुआ है। तो उस समय भी हमारी हिंदुत्व की मान्यता को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा निर्णय यदि सरकारें करती हैं और अंग्रेज सरकार करती है, तो निश्चित रूप से आज के परिवेश में, आज के वातावरण में, आज के माहौल में इस कानून को और सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार का वातावरण हरिद्वार में या अन्य तीर्थों पर अहिंदुओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि हम अभी एक गुरुद्वारे की घटना आई कि उसमें कुल्ला जिहाद, कहीं मूत्र जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, अनेकों प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सनातनियों को ये संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने तीर्थ क्षेत्र की, अपनी धार्मिक मान्यताओं की सुरक्षा हेतु कुछ प्रावधान बनाएं, सरकारें उसमें हमें सहयोग करें, सरकार के माध्यम से उन क्षेत्रों के प्रावधान बने, नियम बने, कानून बने, ताकि तीर्थ का तीर्थत्व, सनातन की मान मर्यादाएं सुरक्षित रह सके, संरक्षित रह सके और आने वाली पीढ़ियों को हम तीर्थ, एक व्यवस्थित, संरक्षित, सुरक्षित तीर्थ हम अपनी पीढ़ियों को सौंप सकें। उसके लिए आवश्यक है क्या है कि यदि किसी क्षेत्र में कोई कानून व्यवस्था है, तो जो भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वह कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, यदि उसकी भारत की न्यायिक व्यवस्था में आस्था है, भारत में आस्था है, तो निश्चित रूप से कानून का पालन करता है। 90% या 90% से अधिक लोग निश्चित रूप से उस कानून का पालन करते हैं। 2-4% लोग यदि प्रवेश कर जाते हैं या दुर्भावना से आते हैं, तो सबके भीड़, सब उस भीड़ के अंदर भी वो अलग से पहचान में आ जाते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान होता है। उस क्षेत्र का पहनावे से, बोली से, कार्यशैली से, उनकी हमारी पूजा पद्धति में इन्वॉल्वमेंट ना करने से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उनको डिफाइन कर देती हैं कि भाई ये अलग है, हम अलग हैं। कि यदि कोई सरदार सोहन सिंह है, सरदार मोहन सिंह है, सरदार सुदर्शन सिंह है, तो जिनकी आस्था भगवान राम कृष्ण में है, गंगा में है, तो उनको हम कैसे हिंदुओं से अलग मान लें? आज भी उनकी अस्थियां गंगा के अंदर आती हैं। कोई जैन धर्म की आप बात करते हैं तो श्याम सुंदर जैन है, कोई राम कुमार जैन है, कोई शिव कुमार जैन है, जो भगवान राम कृष्ण और शिव का अपने आप को वंशज मानते हैं, तो वो हमारे से अलग कैसे हैं? बुद्ध अवतार, बुद्ध, आपने बुद्धिस्ट की बात करी। अब जो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, हम अपने संकल्प में बोलते हैं बुद्धावतारे, तो बुद्धावतार के अंदर हमारे बुद्ध को मानने वाला हमसे अलग कैसे हो गया? वो है तो सब हमारा ही अंग। निश्चित रूप से जो गैर हिंदू की बात हो रही है, तो जो हमारे हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, यहाँ पर केवल उसको कलंकित करने के लिए आते हैं, यहाँ पर अपना जिहाद फैलाने के लिए आते हैं, ये निश्चित रूप से उन पर प्रतिबंध था, प्रतिबंध है और प्रतिबंध रहेगा। कि हरिद्वार गंगा घाटों पर कई बार गौवध होना, गाय का कत्ल करना, वहाँ पर गाय के मांस को गंगा में धोना, अपनी गंदी गाड़ियों को गंगा में धोना, हमारे क्षेत्र में जाकर के कुल्ला जिहाद करना, मूत्र जिहाद करना, अनेक प्रकार के व्यसन करना। और अभी हर की पौड़ी के अंदर 2 लड़के अरब की पोशाक पहन कर के वो अंदर आए और हमें दिखाने का प्रयास करा कि हम मुस्लिम लोग यहाँ अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये समझने का विषय है। अभी एक कश्मीर का एक ग्रुप आया, हो सकता है उनको कानून की जानकारी नहीं थी, लेकिन वह ग्रुप भी हर की पौड़ी क्षेत्र के अंदर घुसने लगा, जबकि वो परिधान से दिखाई दे रहा था कि ये मुस्लिम ही है। तो उन्हें हमारे गार्ड्स ने रोका, वहाँ के तीर्थयात्रियों ने रोका कि इस क्षेत्र में जाना मना है। तो उन्होंने कहा कहाँ लिखा है? तो उनको दिखाई देना जरूरी था कि इस क्षेत्र में जाना मना है, इसलिए बोर्ड भी लगाए गए। और अनेक प्रकार के कुकृत्य इनके द्वारा गंगा घाटों पर, गंगा तीर्थों पर किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्मावलंबियों को अपनी धर्म को सुरक्षित करने का संवैधानिक अधिकार है और हम उसी के प्रयोग कर रहे हैं, उसी का उपयोग कर रहे हैं। अभी अयोध्या के अंदर हमारी प्रेस वार्ता के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या के 15 किलोमीटर क्षेत्र को मांस और मद्य निषिद्ध घोषित कर दिया। अभी हमारे चारों धाम, आप बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, वो अहिंदू प्रवेश निषेध कर रहे हैं।
अभी उज्जैन महाकालेश्वर उज्जैन से यह बात आई कि हम उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर को भी गैर हिंदू प्रवेश निषेध करेंगे। तो हम सनातनियों को भी अपने धर्म क्षेत्रों का, अपने तीर्थ क्षेत्रों का, अपने मंदिरों को सुरक्षित संरक्षित रखने का संवैधानिक अधिकार है। आप मक्का मदीना में किसी हिंदू को नहीं ले जा सकते, अन्य बहुत सारे इनके स्थान है जहाँ पर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता। तो वे हमारे यहाँ जब उनकी मान्यता नहीं है, वो हमको मानते नहीं, हमारे धर्म में उनकी कोई आस्था नहीं है, तो वो क्यों हमारे क्षेत्र में आए, क्यों हमें अपवित्र करने का प्रयास करें। Tourism remains the backbone of Uttarakhand's economy. Millions travel each year to Chardham shrines and hill stations. But beneath the flow of pilgrims lies a quiet anxiety. Business owners worry that rising polarization will affect livelihoods. Residents say deeper issues, unemployment, healthcare gaps, migration from villages, risk being overshadowed by religious debates. This is Sakshi Mehra reporting from Dehradun, Uttarakhand.